another episode of Extraordinary Movies by me, Karuna, the founder of Extraordinary, where we bring inspiring stories of every woman. I'm on a mission, as I always say, to bring stories of every human being, every woman on this planet, because I believe everyone has a story, and unique story, and a unique journey of life, which has to be spreaded, which has to be shared, ताकि लोगों को और उससे क्या कहते हैं सपोर्ट मिले और वो हम सीख पाए एंड लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए. So today, today we have a wonderful lady, a beautiful lady here. The reason I said beautiful आपको बाद में पता चलेगा क्यों मैंने beautiful इतना insist किया word पे. So we have a beautiful lady here, Priyanka, who's going to share her wonderful journey of life with us. Priyanka is into a field which, I can say she got into this field with a reason and with a mission, with an aim, not only for herself but for other women around. And why she got into this field, what is she doing, ये सब हम उनसे जानेंगे. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी. अब प्रियंका, so to you, Priyanka, how are you? Namaste, Karuna. Namaste, everyone. And I'm doing great. And I'm very happy to be here, to be part of Extraordinary Movies. I'm very happy to be. That's nice. Thank you. So, Priyanka, tell us a little about you, your profession. What do you do? Sorry, I couldn't get you. Okay. I think जैसे हमेशा नेटवर्क थोड़ा सा धोखा देता है, अभी भी हो रहा है. So, Priyanka, tell us a little bit about you, your profession, what do you do? A small intro about yourself. Yes, Karuna. This is something I always love to speak about because it's very interesting part. I love to speak about myself. So I'd start that. My name is Priyanka De Rao. I am born to a Bengali beauty and I am married to the purity of Orissa. My personality has been chiseled by the strength of Maharashtra, and my daughter has been nurtured by the goodness of all three states. And Wow. when asked, she introduces herself as an Indian. I am a mompreneur, a beauty and business coach, and I am the founder of The Pride Beauty and Business, a director brand partner for Oriflame India Private Limited. And I'm a very happy-go-lucky person. I enjoy every moment of my life to the fullest. I believe that when you are in a moment, live it as it your last moment, make the best of it. That's what I believe in. And I love to pamper myself. I enjoy life and make everyone associated with me to enjoy life, to enjoy themselves. I make sure they enjoy whenever they are with me. That's the gist of about me, what I am as a person. Wow. So yes, Priyanka, the moment the screen is, since the moment you all are looking at us, you can see Priyanka has a smile on her face. So yes, she's a very happy-go-lucky person and very jovial person. And she, looking at you, you're a very positive person. मैं आपको जब से जानती हूँ ना, we met I guess only once, but we have interacted only on social media. But I always like the way you keep posting about different things about your business. But you seem to be a very positive person. तो वो मुझे आपके बारे में तो बहुत अच्छा लगता है. Yes. So yes, जो उन्होंने अपने बारे में कहा है वो तो for sure true, 100% true है. So Yes. Priyanka, you said you are into Oriflame. Yes. Oriflame ऐसा भी कोई ब्रांड नहीं कि मुझे किसी इनके बारे में ज्यादा बताना पड़े. It's a very well known cosmetic brand. Yes. Many women, not even women, I guess everyone knows about Oriflame. Yes. Yes. It's a very well-known brand and one of the leading brands in cosmetics, I believe. Yes. Right. So you have always been into this field? No, I came into this field following my passion. I am a BTech in computer science and engineering, and I was pursuing my career as a developer. I've worked with various corporates. So like 2 years, I was in Bhubaneswar. For 2 years, I was in Jamshedpur. And when after marriage, I came to Mumbai. In Mumbai, just because it was immediately after marriage, I enjoyed the first 3 months after my marriage a lot. And then of course, I need to get back to my job again. So I joined here again with the corporate, and 1.5 months I have worked. And let me tell you, I am from Odisha.
Mumbai life and Odisha life is a hell lot of difference. There's a lot of difference. I agree. People in the east, I know, with no offense, are very lazy people, very lazy people. If I compare to Mumbai, and Mumbai life is lots of hustle and bustle. They are always running, running, running. Every second counts over here. Every second counts over here. So the biggest challenge I had was learning to get into that train, local train. And believe me, but Mumbai is the best city I have ever been. If though I am from Odisha and I am from Bengal, yes, I have, but been staying in Mumbai for the last 12 years now, and I enjoy. I love Mumbai. This is the best city. The most helpful people are here. You will find the most helpful people, most honest people here. Because if when I came to Mumbai, I was totally alone. No one to guide me, no one to help me. Me and my husband both totally new to the city. And to live in the city, how to exist in the city, or to survive in the city, I should say, it is the Mumbai people who taught me. Even if I had to get into the train, and even if you get down the train, the ladies in the compartment taught me how to do so. So, Okay. It's been like I always love those people. Even that's when my love for people, because here we don't care. You reach your destination, you don't reach your destination, we don't care. That's for the general tendency of people I found over here. But in Mumbai, is not so. Who am I to them? I'm a very stranger to them. I didn't even belong to their state. I was totally new. I was not even speaking their language. Half of the time, I didn't know what they were speaking. But then you can understand my feeling, my requirement, and they used to guide me. What could be the best example of that? I mean, anything other than this. So that's the best part. So they have always been helpful and be my survival, reason of survival. In Mumbai, all those ladies of here, all those people I've come across. Maybe I'm very blessed to have come across very good people all the time. Yes, this is one of the reasons. But yes, by the time I could get used to this hustle bustle of Mumbai life, yes, I was newly married. I then was blessed that I was expecting after 1.5 years. And then, but this, as such, I was not used to all those traveling. I stay in here. I used to stay that time in Hiranandani Estate, Ghodbunder Road, and my office was at Kodak House near CST. You Oh, can understand the difference. I had to travel, so it was literally, and that time all the overbridges in Thane were being constructed, so it was literally 3 hours. I had to travel 3 hours, then come back 3 hours. And since it was the initial months of my pregnancy, I was all the time tired. Even I was sleeping at my office. When I get back to my home, I couldn't do anything at home. So I found like I was and with all the hustle and bustle in the train, dhakka mukki and all, I was all the time, मतलब मेरा दिल यहाँ पर होता था, मतलब कभी भी निकल आने से, all the time I was tension. Oh my God, I don't know, am I okay? Is my baby okay? I was always like that. I just decided that I'm not going to like remain alive with such thoughts or such attacks all the time. So I had to choose. I had to choose. Like, of course, first baby, your firstborn is, of course, the love of your life forever, for everyone in the family. Like most happiest, happy news or happy moment for everyone in the family. So I had to take care of it. So I chose that I need to leave because I couldn't like manage both. So I had to leave my job, and I left happily because I was doing one thing. I was always sure in my life, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि मैं जब कोई डिसीजन लेती हूँ तो आई एम वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई एम टेकिंग डिसीजन. I don't know उसका उसका result क्या होगा. But if I feel that if I'm taking a decision and I'm happy about it, I simply go with the flow. I enjoy it. वो मोमेंट उस डिसीजन को एंजॉय करती हूँ. एंड आई नेवर, मे बी उसका रिजल्ट कुछ और हो सकता है, गलत हो सकता है, बट आई नेवर रिग्रेट माई डिसीजन बिकॉज दैट्स व्हाट माई हार्ट वांटेड एट दैट टाइम, दैट्स व्हाट माई माइंड वांटेड एट दैट टाइम. मेरे ब्रेन एंड माइंड दोनों ने एक ही डिसीजन लिया था एक साथ. So that's when I moved along and I left my job to completely enjoy my motherhood, because मैंने ऐसा सोचा था कि ठीक है पैसा मिल रहा है, no doubt अभी छोड़ दूंगी तो पैसा कहाँ से आएगा मेरे हाथ का. I mean all those I'm a shopaholic.
वो सब मैं कैसे करूंगी एंड ऑल दोस थिंग्स. यस, ओके, बट दिस इज द डिसीजन आई नीड टू टेक. आई कैन अगेन, आई थिंक आई एम वेल एजुकेटेड, या फिर वेल अच्छे से माँ बाप ने पढ़ाया लिखा है, कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी के साथ कर ही लूंगी. बट दिस इज अ डिसीजन आई हैड टू टेक. आई हैव टू लीव माय जॉब एट दैट टाइम. So yes, I left and I was enjoying my life like anything. पहले 3 months तो it was fantastic because you get lots of love from all the, I mean, my husband and all the family members, and I think everyone he listening to this can relate to that those beautiful moments when they were first pregnant. That is like uncomparable. That is like uncomparable, those moments. So I was literally enjoying myself, all the pampering, all the food, and grudging our food and watching TV. 3 months literally had done that. I was literally enjoying everything. But then धीरे धीरे ऐसा हुआ, हर चीज का एक मोमेंट होता है, हर चीज का एक एंड होता है. तो 3 months के बाद ऐसा हो गया कि नो, अभी मुझे थोड़ा बोर लगना शुरू किया. अभी ऐसा था कि आई वॉज नॉट गेटिंग फूड फॉर द ब्रेन. पेट में तो बहुत सारा फूड जा रहा था, बट आई वॉज नॉट गेटिंग फूड फॉर द ब्रेन. आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. आई लाइक टू, मुझे अप्लाई, अपना हर चीज में अपना दिमाग अप्लाई करना अच्छा लगता है. हर बार हर दिन में एक ही काम को कैसे नए तरीके से कर सकती हूँ, मैं उस चीज को ध्यान देती हूँ. तो वो चीज मुझे चाहिए होता है, बट देन उस चीज के लिए भी आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, राइट? तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है, एंड देन उसके लिए भी यू नीड टू. और एक चीज है, व्हेन यू आर, एज आई सेड, आई एम अ शॉपaholic. मुझे अपने आप को कंट्रोल है ना, आई एम लिमिटलेस. मैं अपने आप को कंट्रोल किसी चीज में नहीं कर सकती. आई डोंट लाइक टू लिमिट माई सेल्फ टू एनीथिंग, कि मुझे ये लिमिट चाहिए ही नहीं है. मुझे जो चाहिए उस वक्त मुझे चाहिए ही चाहिए. दिस इज वन ऑफ माई एटीट्यूड, अगेन व्हाई आई एम इनटू दिस बिजनेस, कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए. तो ये एटीट्यूड था. तो अभी लाइक आफ्टर 3 months आई हैड डेफिनेटली एग्जॉस्टेड मैक्सिमम ऑफ माई सेविंग्स. ऐसा था. बट नाउ यस, मुझे चाहिए आगे कि यस, डेवलप भी अपने आप को करना है, क्योंकि इतने दिन मैं जब आई एम ए वेरी एम्बिशियस, I was a very ambitious student. I'm still very ambitious. इतने ambitions के साथ अब लिटरली आप पूरी पर्सनैलिटी को नहीं छोड़ सकते हो. यू हैव टू टेक सम डिस्टेंस, बट आप पर्सनैलिटी नहीं छोड़ सकते. थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, राइट? तो अभी विद सो मच एम्बिशियस अराउंड, अभी बाय द टाइम क्या हुआ था, आई वाज ऑलरेडी यूजिंग Oriflame एज अ कंज्यूमर. आई यूज्ड टू लव द प्रोडक्ट्स, एंड वन रीजन वाज दैट, आप सोचो आज की डेट पे हर एक चीज ऑनलाइन हो चुका है. एवरीथिंग इज एट द क्लिक ऑफ योर फिंगर. आपने क्लिक किया, वो चीज आपके घर पे आ गई. बट रिमेंबर, लाइक right now I have completed 10 years with Oriflame. My daughter is 9 years and I have completed 10 years with Oriflame. तो सोचो 10 साल पहला कौन सा कंपनी ऑनलाइन आपको डिलीवरी देता था? And my hectic schedule, like literally 14 hours including the travel and all. मैं पूरा दिन घर से बाहर रहती थी, सुबह जाती और घर में अंदर घुसती थी. इतना टाइम में मुझे शॉपिंग का कहाँ टाइम मिलता था, अदर देन जो ट्रेन में थोड़ा बहुत कभी अच्छा कुछ आ गया है, वो दैट्स इट. बट दैट टू आपको मेरे इयररिंग्स वेयरिंग्स, यू कैन से आई एम वेरी हैप्पी, ऑल्दो आई एम वेरी, I love jewelry and all, pampering myself. But वो जो चीजें होती थी, वो थोड़ा बहुत शॉपिंग तो मैं कर लेती थी, but other than that there were many other things which I needed for myself. So I was already into Oriflame, and that too also because home delivery तब Oriflame में available थी. मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था कि भाई मैं किसी को बोलूं वो मेरा सामान लेके आए. तो मेरी डिपेंडेंस नहीं थी. I wanted to be independent here also, कि मुझे मेरा सामान जो चाहिए मुझे वो मैं उसको बोलूंगी, वो कब लेके आएगा, मुझे ये चाहिए ही नहीं था. मेरा आईडी था, मेरा खुद का ऑर्डर था, मेरे घर पे मेरे पार्सल आ जाते थे. इवन इफ आई वाज नॉट देयर टू रिसीव, द सिक्योरिटी वाज टू रिसीव इट. दिस वाज वन फैसिलिटी. क्यों? इसलिए मैंने Oriflame ज्वाइन किया था, फॉर पर्सनल यूज, फर्स्ट रीजन. उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर मैं बोर होना शुरू हो गई 3 महीने बाद, एंड आई नीडेड टू मूव आउट. अब तक ये था कि आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. मतलब आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट. आई शुड से आई वाज अ बुकवर्म. आप मुझे किताबें पकड़ा दो, मैं पूरा दिन सिर्फ किताबें मैं पूरी दुनिया को भूल सकती हूँ. म्यूजिक एंड बुक्स वर वन थिंग आई वाज ऑलवेज इनटू. आई लव रीडिंग बुक्स. तो आई डिडंट नीड टू सोशलाइज विद पीपल. जरूरत ही नहीं थी. क्या जरूरत थी? जॉब था, आपके हाथ में पैसे थे, आपको जब भी आपको यू वांटेड एंटरटेनमेंट, यू हैड टीवी और यू हैड बुक्स टू गो थ्रू, एंड यू कैन रियली गो थ्रू बुक्स ऑल द टाइम. तो आई डिडंट नीड टू सोशलाइज आल्सो दैट मच. अभी ऐसा हो गया था कि मैं जब ये ऐसा है कि जब मैंने आई डिसाइडेड ओके लुक आई कांट गो फॉर अ जॉब. और एक चीज है, एक प्रेग्नेंट लेडी को कोई जॉब भी नहीं देता है, राइट? हैज अ पॉइंट.
नहीं देता है, इवन इफ आई वांट टू गो बैक टू जॉब नहीं देगा कोई कंपनी. So I had to do something which I could do on my own without being like so committing much of my time to someone else. I wanted all my time to myself. मैं मेरे हिसाब से काम करना चाहती थी. मेरा मूड है तो काम करूंगी, मेरा मूड नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगी. As I said, I didn't want any limits to boss. Yes. So you wanted to be your own boss. Yeah, exactly. My be your own boss. इस टाइप का कंसेप्ट था मेरा. अभी ये सब कुछ डिफाइन कर दिया गया था, बट उसका उतने साल पहले 10 साल पहले ये चीजें डिफाइन नहीं थी. I didn't know what I was doing, but I knew what I wanted to do. मुझे यही कुछ चाहिए था. So this was one way. Another thing, since as you can see, I love to pamper myself. Or Oriflame was one thing which was helping me was out. Just imagine I was using my passion, and slowly it went on to become my profession and to a business, a developing business. So thereon, I went on to my mentor. I started attending those trainings, meeting those 10 people. Because whenever you go to such meetings, you have at least 10 people coming over there and discussing some very productive things. अच्छी उनके experiences share कर सकते हैं, some अच्छी knowledge share करते हैं, which I like. Rather than going down to the ladies sitting down and gossiping about each other. I always hated this. Even in my college times, I'd rather be alone than be in part of all those discussions. I'd rather be alone and read some books. Or since I'm a computer science engineer student, I loved languages. I could write the same code with in 10 different formulas in the same language, again in 2 to 3 different computer languages. I loved it. I loved it so much. And every time I used to finish it, and then I went to my sir. And जब मैं computer science, जब मैं student थी तब की बात कर रही हूँ, मैं एक सॉल्व कर लेती, एक कोड सॉल्व कर लेती थी. देन अगेन यूज्ड टू गो. मैं इतना, मेरे सर परेशान हो जाते थे मुझे वो क्वेश्चंस देते हुए कि मैं बहुत फटाफट उसको सॉल्व कर देती थी. तो मुझे वो अच्छा लगता था. तो यहाँ पर मैं जब मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता था कि आप नीचे जाके उन लेडीज के साथ बात करो जो कुछ इधर उधर की बातें करते थे. रादर मैं उन मीटिंग में जाके वहां से मुझे कुछ सीखने को मिलता था. मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता था. वहां मुझे वो पॉजिटिविटी, बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती थी. मुझे बहुत अच्छा लगता था. एंड देन क्या होता था, अभी सोचो, उस वक्त मैं एक 6 मंथ ओल्ड प्रेग्नेंट लेडी हूँ, इतना बड़ा पेट के साथ. अब आप कितना ज्यादा क्या कर सकते हो, आप कितना ट्रैवल कर सकते हो, कुछ नहीं. अब हमारी सोसाइटी है, आजू बाजू में जाऊंगी, ऊपर नीचे जाऊंगी, वहीं पर मैं जाके अप्रोच करना. एक तो मुझे बहुत पसंद था, तो सारे प्रोडक्ट्स भी मेरे पास थे, तो मेरे प्रोडक्ट्स को ही मैंने कैटलॉग के साथ लोगों को दिखाना शुरू कर दिया. तो और ये भी सबसे मजेदार बात है, जब मैंने ओरिफ्लेम के बारे में बताना शुरू किया, so everyone was very supportive of me. All the ladies in that society, where you said, which whoever I met, they were all very encouraging. कुछ ना, maybe उसकी जरूरत भी नहीं है, but still कुछ ना कुछ तो उन्होंने मुझसे परचेस किया. Wow. Just to encourage me. सोचो, एक छोटा सा परचेस, मे बी मेरे पास बहुत कुछ है, बट अगर कोई सामने से मेरे पास आता है, क्या जाएगा अगर मैं इसको 100 रुपए का लिपस्टिक खरीद लेती हूँ, क्या जाएगा इस छोटा सा बॉडी स्प्रे खरीद लेती हूँ, कुछ नहीं. मेरे इस परचेस से मेरा कुछ नुकसान नहीं होता, मेरे पास तो एक सामान ही आता है, बट वो छोटा सा परचेस जो सामने वालों को कितना बड़ा मोटिवेशन देके जाता है. That they have done to me. और उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली थी. Even I remember the name of the lady. Her name was Sucheta, and she was a cosmetic engineer. That was a new thing term I heard. Oh my God, cosmetic engineer भी ऐसा होता है. हमारे like in the East they have only 2 things. You become a computer science engineer or you become a doctor. उस टाइम की मैं अभी, तब मेरे 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, मतलब या फिर उससे भी पहले. हमारे पास ज्यादा स्कोप ही नहीं था. ये दोनों साइंस स्ट्रीम, मतलब यही दोनों स्ट्रीम है. यू बिकम ऑल ऑफ दिस. उसके बाद आपका कोई स्कोप ही नहीं है वहां पर. एंड अब बीइंग ए लेडी, देन पेरेंट्स आल्सो आप बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, यू नो. हमेशा हमको भी डर लगता है. अभी बच्चे हैं तो हमको समझ में आता है उनका डर क्या होता है, राइट. तो वो सब था. तो बहुत सी चीजें. तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली थी कि प्रियंका, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब. एंड सोचो, मैं उस वक्त जो काम, मैं अभी ये 6 मैं कंटिन्यू करती रही. मैं 6 मंथ्स के बाद ऐसे ही जितने जो मेरे से होता था, जितना टाइम मुझे मिलता था, मैं उतना टाइम आई यूज्ड टू स्पेंड. मैं खुद चीजों को स्टडी करती थी, कैटलॉग समझती थी, इंग्रेडिएंट समझती थी, क्योंकि मुझे जो मैं सामने वालों को बोलती थी वो मुझे बेस्ट ऑफ नॉलेज बताना था. उसको हर चीज मुझे बेस्ट देने थे, बेस्ट रिव्यूज देने थे.
तो वो मैं समझ के उनको मैं एक्सप्लेन करती थी। देन उसके बाद डिलीवरी के बाद, इवन डिलीवरीज के टाइम पे मैं बता दूं, दैट टाइम ऑल्सो, चलो व्हाट्सअप नहीं था, एटलीस्ट फोन था, आई यूज टू कलेक्ट ऑर्डर्स, और उस वक्त भी मैं ऑर्डर्स, ऑफ कोर्स होम डिलीवरी हो जाते थे मेरे घर पर, एंड पीपल यूज टू कम एंड कलेक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मी। इवन दैट टाइम ऑल्सो थोड़ा बहुत जो भी होता था, आई हैड डन दैट। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स 2.5 months, जो मुंबई में बोला जाता है कि महाराष्ट्र में बोला जाता है 2.5 months बेबी एंड मम्मी का रेस्टिंग पीरियड होता है, दे शुड टेक सम रेस्ट। वो मैंने रेस्टिंग पीरियड किया, एंड फिर वापस वन हैंड बेबी एंड अनदर हैंड मेरा झोला, फिर से निकल गया। लेकिन इट वाज फन। ऑटो में जाती थी, ऑटो में आती थी, तो उस वक्त भी मैं लेके जाती थी, एंड लेडीज यूज्ड टू हेल्प मी, यू नो, जब मैं जाती थी ग्रुप में, लेडीज, एक लेडी तो मेरे बच्चे को पकड़ के वो खेलते रहते थे बच्चे, वो उनके साथ खेलते रहते मेरी बेटी के साथ, एंड देन आई यूज्ड टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू अदर लेडीज एंड ऑल। वो लोग उसी के साथ, मेरी बेटी भी रहती थी, मेरा काम भी वहां पर होता रहता था, एंड दे यूज्ड टू एनकरेज मी अ लॉट। उन्होंने एक चीज बोली थी, प्रियंका, नेवर एवर लीव इट, अब जो कर रहे हो करो, करते रहो, यू विल रीच ग्रेट हाइट्स। उस वक्त मुझे समझ में, उस वक्त में लोग, आई यूज्ड टू हार्डली अर्न एनीथिंग, वो अगर महीने का 1000, 1500, 2000 रुपए भी होता था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अर्निंग्स टू रियली काउंट, एंड बिलीव मी, मैं जिसके साथ बिजनेस कर रही हूँ, मेरे क्लाइंट से भी डिस्कस करती थी कि पता है आई अर्न दिस मच दिन दिस ईयर, and they were also encouraging me, yeah, that's great, okay, you have done a great job, look the kind of clients I had, and as I said, I am blessed, literally। इस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, एंड उस वक्त लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था कि मुझे बोल क्या रही है, कि यू विल ग्रो टू ग्रेट हाइट्स। आज के डेट में मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने मुझे क्या बताया था। बट नेवर एवर गिव अप, जो कर रहे हो कंटिन्यू करो, नेवर एवर लीव इट। तो वो मैंने धीरे धीरे डेवलप किया, एंड उसके बाद क्या, मैं ज्यादा लेडीज से मिलती गई। अभी ऑफ कोर्स मैं इतनी सारी, लिटरली आप समझो हर दिन मैं एटलीस्ट 10 लेडीज के साथ इसी बारे में इंटरेक्ट करती थी। ऑफ कोर्स उसके हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया रिगार्डिंग एवरीथिंग। मुझे स्किन केयर बहुत पसंद है, तो स्किन केयर बहुत पसंद है। उस रिगार्डिंग मैं जब इतनी लेडीज के साथ डील करती हूँ, आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड द स्किन टाइप, उसकी स्किन की रिक्वायरमेंट, तो उसके हिसाब से मैं उनको प्रॉपर गाइड भी कर पाती थी, तो उनको वो चीज रिजल्ट भी देता था। इसलिए धीरे धीरे लेडीज, और मैं उनको ये भी सजेस्ट करती थी कि लोग, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को, मैं प्रोडक्ट्स तो लेती हूँ अपने के लिए, बट आई यूज्ड दिस एज एन इनकम अपॉर्चुनिटी, व्हाई डोंट यू जॉइन इट टू। आप क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो, and rather than buying it from me, have your own idea and buy it from your own idea। गाइडेंस के लिए मैं जैसे आज आपको गाइड कर रही हूँ, मैं सेम उसके बाद भी आपको गाइड करूंगी, बस डिफरेंस ये होगा कि आप यहाँ पर अपना और पैसा बचाओगे, ये चीज हो जाएगी, सेविंग योर मनी। इस तरीके से धीरे धीरे लोग, लेडीज मुझसे चुनना शुरू की। कुछ लोगों ने पर्सनल यूज के लिए ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने बिजनेस के लिए ज्वाइन किया। जो लोग बिजनेस के लिए ज्वाइन करते थे, हम उनके साथ उस तरीके से काम करते थे, उस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती थी। पहले तो सब कुछ हमारा फील्ड वर्क ही होता था, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं जानती हूँ कितना डिफिकल्ट होता है कि आप 2.5 months या फिर धीरे धीरे जो भी है, इन्फेंट ही है, उसके साथ ट्रेनिंग्स अटेंड करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट मैं उसको लेके जाती थी सारे ट्रेनिंग्स में, एंड भगवान की कृपा से माय बेबी वाज ऑलवेज वेरी कोऑपरेटिव। ना ज्यादा ना ज्यादा कुछ नहीं, उसका भूख लगी है बस दूध पिला दो सही वक्त पर, दैट्स इट। उससे ज्यादा उसका कोई रोना नहीं होता। तो इसकी वजह से वो ऑल द टाइम मेरे साथ रहती थी। मेरे साथ नहीं तो किसी न किसी मेरी फ्रेंड के पास तो रहती थी, वेयर शी यूज्ड टू एंजॉय, दे यूज्ड टू एंजॉय। वो भी खुश रहती थी, मैं भी खुश रहती थी, अलोंग विद द बेबी। तो मैंने जो काम करना सीखा है, मैंने अपना कैरियर जो बनाया है, मैंने अपनी बेटी को संभालते वो किया है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Because as I said, I was all alone in Mumbai, कोई हेल्प नहीं था। Of course, husband पूरा दिन ऑफिस में, of course he has to go to his job। मुझे घर देखना ही है, मुझे बेबी को देखना ही है। तो मैं जो बेबी का टाइम भी था उसके साथ तो एंजॉय करती थी, उसके साथ I used to make that time productive also। I used to use that time for increasing my income। और तो उसके बाद मुझे I used to enjoy भी करी थी मैं हर तरीके से, you know, as I said, मुझे सब कुछ चाहिए होता। I wanted best of everything। This is actually an achievement. Yeah, And किसी चीज as you know, I've seen many women, they make मैं हमेशा कहती हूँ, and this is the message even I want to spread, that do not make your child an obstacle, instead make them a part of your journey, which is yeah, exactly what you did. I have done that, and this is what, you know, it's a really inspiring, you are actually you can motivate many people. I am telling all the nadis who are listening to us, seriously,
बी पैशनेट एंड जस्ट लाइक प्रियंका के छोटे बच्चे को लेकर आप एक्सक्यूज या रीजंस मत बनाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, थिंग्स विल एक्चुअली हैपन। आप पॉजिटिव रहो तो। सो प्रियंका has already proved it. I have also done it in the past, so we know we share the same. We actually know, like high five देना चाहिए दूसरे को कि yes we both have done this. So Yeah. amazing, that's seriously very very inspiring and very positive. And you are, आपने जैसे बोला ना शुरुआत में कि yes I have always been कि मुझे ये बेस्ट टीचिंग मुझे करना ही है, I'm very much focused and passion, वो आपकी जर्नी में भी पता चल रहा है कि इट्स योर पैशन एंड डिटर्मिनेशन कि आपने हर चीज में ज्ञान फील्ड वर्क से स्टार्ट करके ना ऑनलाइन तो आजकल इजी हो गया है। पहले आई नो इट वाज नॉट इजी टू गो एंड विजिट प्लेसेस एंड शो द प्रोडक्ट and then you're not even sure whether this person is definitely going to buy or not, but you have to give your 100% every time. Yes, yes, you have to give every time. Yes, that's what. Yeah. तो ये चीज अभी I also understand, as I said, I am like भगवान की कृपा से बहुत कृपा है, मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, इवन माय किड इज सपोर्टिव, सो आई कुड डू लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं करना चाहती थी। बट मैं ये भी रियलाइज करती हूँ कि एवरीवन इज नॉट सो, मैं क्या, हर किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं होती है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हर कोई चाहते हैं, एवरीवन, हर किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं होती है। तो मैं एज ए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ, जरूर नहीं कि मैंने इतना सफर किया है, मैं सफर बिल्कुल नहीं बोलूंगी इस चीज को, बिकॉज आई हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट, I've enjoyed every moment. So I will never say I've suffered. I've enjoyed every moment. हाँ, कोई और सुनता है, because I used to hear even my friends, you know, बुरा कब लगता है जब बाहर वाले जिसको आप जानते नहीं वो आपको कुछ बोलते तो बुरा नहीं लगता है। बुरा कब लगता है जब आपके खुद के करीबी लोग जब बात करते हैं। जब मैं बेटी को लेके जाती थी, कुछ नहीं, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई हूँ, फ्रेंड बोलते हैं हाँ मम्मी तुझे कितना परेशान कर रही है ना, तुझे लेके काम पे जाती है। तो it was I don't know बच्चे को कहाँ तक समझ में आया, it was more like demotivating me, it was more like demotivating me, ऐसा था। लेकिन जब हम बच्चे को taunts actually also create a guilt. It's like, you know, because I've been through this phase and I know जब कहते हैं कि अरे तुम बच्चों को भी सफर कर, it creates a guilt as a mother, but I'm sure हम जैसी माँ ये guilt को भी we conquer and we move on. yes yes exactly, actually it's not guilt, you are made to feel guilt। अभी बच्चे को क्या, बच्चा is enjoying, अभी मेरी बेटी बहुत सोशल है, वेरी सोशल, एंड व्हाई सो, वो कहाँ पर जाए वो तुरंत मिल जाती है, घुल मिल जाती है, इज वेरी सोशल, बहुत स्मार्ट है, एवरी एक्टिविटीज बहुत स्मार्ट है। तो गिल्ट आपको फील कराया जाता है, राइट, पीपल मेक यू फील कि भाई गिल्ट फील करो। ये बहुत ही बुरा लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट दैट। या एग्जैक्टली, तो मेरे दिल में, मैं ज्यादा कुछ बोले, मैंने उनको बोलना था, उन्होंने बोल दिया, ओके आई अंडरस्टूड, ठीक है, मुझे पॉइंट उनका समझ में आया। बट देन मेरा ये क्वेश्चन होता है, जब पेरेंट्स, मैं देखती हूँ कि ले लेके घंटे वो सुपर मार्केट में घूमते रहते हैं, ठंड में जाके शिमला मनाली घूमते हैं इतने ठंड में, तब बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। बट जब मम्मी बच्चे को अपने साथ काम पे लेके जा रही है, हाउ डेयर यू, आप कैसे कर सकते हो ऐसा, बच्चे को काम पे लेके जा रहे हो, यू कैन नॉट डू इट। अरे आप, यू आर सपोज टू लाइक बच्चे को गोद में पकड़ो, घर में रहो, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, करना ही नहीं है आपको कुछ, आप माँ बन के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। This is the feeling people like they want to induce you, and this is one thing we have to fight on a daily basis। आज तक वो फाइट करनी पड़ती है, right? But then we have to like as I said, I'm a very positive person। मैं इतनी पॉजिटिव हूँ कि मैं नेगेटिविटी को अपने पास आने भी नहीं देती हूँ। उनको जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, आई एक्सेप्ट, इट्स ओके, एंड ऑफ द डे मुझे तो वही करना है, मुझे तो वही काम करना है। अगर मुझे तीखी वाली चटनी नहीं पसंद है, मुझे मीठी वाली चटनी पसंद है, तो आप कितना भी बोल दो, मैं मीठी वाली चटनी ही खाने वाली हूँ, राइट? तो सिमिलरली, ओके, इट्स देयर, आपको नहीं करना है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, मूव ऑन, गो अहेड। बट आई अंडरस्टूड दैट एवरीवन माइट नॉट बी, अभी जैसे कि मैंने किया है, मैंने एक जीत के साथ किया है, एवरीवन माइट नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग हेडेड, या फिर उतना डिसीजन नहीं ले पा रहे, एवरीवन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि जो भी, अगर किसी ने मुझे एक बार भी हाँ बोल दिया कि प्रियंका हाँ मुझे करना है, जस्ट गाइड मी, तो उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं,
उसको कैसे क्या करना है, उसके लिए जो भी करना है मैं उसको करूंगी, जब तक वो ये ना बोले प्रियंका नहीं मुझे और नहीं चाहिए, लीव मी, छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। जब तक सामने वाला मुझे ये नहीं बोलता तब तक मैं उसको गाइड करना, मोटिवेट करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आई नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, एंड अगेन इफ आई कैन मेक समवन्स लाइफ इजी बाय माय एक्सपीरियंसेस, देन डेफिनेटली आई लव टू डू इट। दैट्स वेयर अभी जैसे मैंने बताया कि अभी क्योंकि ये अभी डिजिटलाइजेशन अभी ये है, पैंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा बूम हो गया है, बट स्टिल चलो 4-5 साल पहले वो आ चुका था इंडिया में, एंड so the concept of digitalization was introduced। अब मेरा कंसेप्ट ये था कि जब तक वो छोटी है, मेरी बेटी जब तक छोटी है, इट वॉज इजी कि मैं हमेशा उसको कैरी करके चल रही हूँ, बट जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, उसके खुद के स्टडीज है, उसके खुद के क्लासेस है, आई मीन शी गोज टू द ओडिसी डांस क्लासेस, शी हैज अ कराटे क्लासेस, ओके, ये सारे क्लासेस, एंड शी नीड्स टू स्टडी आल्सो। अच्छा मेरी बता दो, मेरी बेटी को मैंने आज तक ट्यूशन में नहीं डाला है, शी स्टडीज ऑन हर ओन, either she has even again I should say God's blessings, उसको स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है वो समझ लेती है, शी डज हर ओन होमवर्क, और जब भी उसको हेल्प चाहिए होता है शी अप्रोचेस मी लाइक इंग्लिश, हिंदी। You went on mute, I guess. Okay. Sorry, can you hear me? Yeah, it says. Okay, okay, I call आ गया इसकी वजह से। Okay, okay, here is my daughter. Hello. Hi. Hello. Hi. What's your name? My name is Prajakta. Prajakta. Hi, Prajakta. So, Prajakta, you also use Oriflame products? Baby products है आपके, मुझे पता है. Yes. Okay. She is very confident. Huh? She looks very confident now. Yes, she is. Okay, तो अभी वो खुद अपना होमवर्क खुद कर लेती है, कुछ भी सब्जेक्ट्स है जहाँ पर I can help her, and then of course in maths and all her father is there to help her. उसको अभी तक ट्यूशन में नहीं दिया because I don't believe, क्योंकि जब मैं उसके साथ हूँ, मैं कर सकती हूँ, then I do it for her, and maximum time she handles herself, वो कर लेती है, so she does it on everything on her own। तो ये मैंने तब रियलाइज किया कि अभी मैं उसको बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकती हूँ उसको लेके, सो आई हैव टू फाइंड आउट सम वे वेयरइन आई कैन मीट मोर एंड मोर पीपल दैट, एंड और एक चीज ये भी था कि अभी क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है, अभी जो लोकली जो है यहाँ पर मुंबई एंड अराउंड जो है उनके साथ तो मैं मिल सकती हूँ, इवन कि मैं नागपुर में जाती हूँ, यहाँ नागपुर में एक मेरा वहाँ पर टीम है, उनकी ट्रेनिंग्स में भी एटलीस्ट मैं 2-3 महीने में एक बार चली जाती हूँ, once in 3 months is enough for them for a training, and then even कि I have gone to, I have been literally moving to Patan in Gujarat, I have a big team over there, वहां पर मैं जाती थी, फील्ड वर्क करती थी, बट देन जो बहुत बहुत दूर है उन तक मैं अपना जो नॉलेज है वो कैसे शेयर करूँ, क्योंकि माय नॉलेज कम्स नॉट ओनली फ्रॉम द कंपनी ट्रेनिंग्स, इट कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई हैव गेन्ड ओवर द इयर्स। वो नॉलेज सिर्फ मेरे तक ही रह रहा था, इट हैड टू गो टू माय पीपल आल्सो, एवरीवन इन माय एवरी मेंबर ऑफ माय टीम शुड हैव एज मच नॉलेज एज आई हैव, वो होना ही चाहिए उनके पास। तो इसके लिए ही मैंने अपना पेज शुरू किया इन 2019, दैट वाज नोन एज द प्राइड, तब मैंने शुरू किया, उसमें मैंने अपना नॉलेज डालना शुरू किया, अपने एक्सपीरियंसेस डालने शुरू किए वहां पर, एंड व्हेनेवर समवन वांटेड इट आई यूज्ड टू सेंड द वीडियोस ओवर देयर दोस पेजेस। और इसमें शुरू किया कि व्हाट्सएप पर जब इतने लंबे लंबे वीडियोस भेजते हैं तो उनका मीडिया कवर हो जाता था, तो एक लिंक से उनका मीडिया भी यूज नहीं होगा, एंड दे वुड गेट द प्रॉपर नॉलेज टू। इस कंसेप्ट के साथ ही मैंने द प्राइड का पेज शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि अभी ऐसा हो गया कि यार प्रियंका तो करती है ना, प्रियंका वाज अ नेम, उसको सब पहचानते हैं, वो तो प्रियंका से सब कुछ हो जाता है, इट वाज लाइक दैट। अभी उनको और प्रियंका में इंटरेस्ट नहीं रहा कि यार प्रियंका तो जो भी करती है वो अच्छा लगता है, जो भी करते हैं अच्छा लगता है, इट वाज लाइक दैट कि तब मुझे समझ में आया नो, अभी नाउ आई हैव टू ब्रिंग अदर पीपल आल्सो, उनको दिखाना है कि बाकी लोगों ने भी कैसे अचीव किया है। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग माय टीम आल्सो, आई स्टार्टेड पुशिंग माय टीम आल्सो कि देखो यू टेल मी योर एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंसेस तो है बट आपके एक्सपीरियंसेस क्या है,
You need to share them. That's when I started engaging my team also. I made them whatever they could. आपको थोड़ा सा पिक्चर ही बनाना है, कुछ लिखना है, या फिर थोड़ा सा वीडियो में कुछ बोल देना, whatever, start doing it, because that is helpful for me also and for other people also. आपके क्लाइंट को भी बिलीव करने की yes you can, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप, इसे हर कोई कर सकता है. It's that easy. तो इसके लिए मैंने फिर अपने मेंबर्स को उसमें एंगेज करना शुरू कर दिया, उसके कंटेंट्स में एंगेज करना शुरू कर दिया. तब मुझे और रिस्पॉन्सेज अच्छे मिलना शुरू कर दिए. ये हो गया कि उनको और, तो दैट्स व्हेन धीरे 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 मैंने डेवलप करना शुरू किया. दैट्स व्हेन आई रियलाइज, और एक चीज मैंने रियलाइज की कि आई कैन नॉट बी द सेम ऑल द टाइम. आई नीड टू वर्क आउट ऑन माई स्किल सेट्स. मुझे अपने आप को डेवलप करना है. अब मुझे अपने आप को डेवलप करना है. अभी तक मैं क्या कर रही थी, पहले अपने आप को डेवलप किया, फिर देन मैंने टीम के पीछे लगना शुरू किया, उनका डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया. फिर कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गई, क्योंकि मैं तो वो नए हो गए, मैं पुरानी हो गई. अब मुझे खुद को डेवलप करना है, मुझे खुद को डेवलप करना है. जब मैं खुद को डेवलप कर रही हूँ तो हमेशा आई एम नॉट अवेलेबल टू द टीम. That's when I decided that no, now is the time I need to make them independent of me, because what I have become, because I wanted to become, and I have worked in that way. अगर मैं बोलती हूँ मैं आज एक डायरेक्टर ओरिफ्लेम में, बिलीव मी, आपको मैं पुश कर करके खिला सकती हूँ, बट निगलना आपको खुद को है. राइट तो मैं आपको खिला तो सकती हूँ, निगलना आपको खुद के, और वो निगलने की इच्छा भी आपकी होनी चाहिए, है ना. तो इसलिए ये जरूरी था कि वो आप में वो जील होना चाहिए. हमेशा यही नहीं कि मैं धक्का मार रही हूँ तभी आप कुछ कर रहे हो और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो. हाउ कैन, तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कब डेवलप होंगी. आई वॉज नॉट एबल टू डेवलप दैट केस. दैट्स व्हेन एवरीवन, उसके बाद मैंने यही शुरू किया कि जो भी मेरे साथ थे, काम कर रहे थे, तब तक मैं एक स्टेप पे उनके साथ थी. अब मैंने उनको इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया, हर एक चीज सिखाना शुरू कर दिया कि कभी कुछ ओके मैं अच्छी हूँ, अच्छी भली हूँ, आज सब कुछ कर पा रही हूँ आपके लिए, बट कल कुछ बाई चांस बाय गॉड कुछ हो गया, या फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप क्या करोगे. क्या आप अपना काम छोड़ के बैठ जाओगे. प्रियंका तो नहीं है, नहीं ना. यू वाई इज एनीवन एसोसिएटेड विद ओरिफ्लेम. अपने खुद के लिए एसोसिएटेड हो रहा है, मेरे लिए तो एसोसिएट नहीं हो रहा है. जब प्रियंका नहीं है तो उनका काम क्यों स्टॉप होना चाहिए, उनको भी काम आना चाहिए. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग माय पीपल इंडिपेंडेंट. नाउ एवरीवन इन माय टीम, थोड़ा बहुत नए मेंबर्स को छोड़ के जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, दे आर ऑल वेरी इंडिपेंडेंट पीपल. दे कैन डू देयर ओन वर्क व्हाटएवर रिलेटेड टू ओरिफ्लेम. सिमिलरली मैं सेम चीज अपनी बेटी के साथ भी करती हूँ. मैं ये कभी भी इनकेस कभी मुझे कुछ भी हो जाए, शी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट. मैं नहीं हो तो अपना खुद का कुछ भी वो कर सके, एवरीथिंग, उसको मैंने इस तरीके से मैं बना रही हूँ उसको. तो आई हैव मेड माय डॉटर इंडिपेंडेंट, एंड द सेम थिंग आई डू टू माय मेंबर्स. आई मेक देम इंडिपेंडेंट, बिकॉज व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हेन you develop a leadership quality. That's when you can achieve whatever dreams you want in your life. Yes. एंड उसके यस यही तो ये चीज है. दैट्स व्हेन उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सीखती गई कि हाँ, आपका एक, आप जब कितना काम कर रहे हो तो आपकी एक ऑथराइज्ड कंपनी होनी चाहिए. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड द प्राइड, जो नाम था, तो द प्राइड को मैंने फिर उसको कंपनी बनाया. मैंने जो भी उसका फॉर्मेलिटीज थे, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके मैंने उसको कंपनी बनाया. एंड देन उसके साथ ही मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया. मैंने अपना ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया, पर्सनल ब्रांड पे काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज द वे आई वर्क इज माई वे, सो आई हैव टू डू द ब्रांडिंग ऑल्सो. तो मैंने वो करना फिर शुरू कर दिया, उसके साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया. वी हैव, आवर टीम हैज अ यूनिक वे ऑफ वर्किंग. हम अपने तरीके अलग तरीके से काम करते हैं, तो इसलिए उसका एक ब्रांडिंग भी जरूरत था. इसलिए द नेम द प्राइड. और द प्राइड का दो मीनिंग है. एक, अगर हम बायोलॉजी के नाम से जाए तो इट्स अ ग्रुप ऑफ लायंस. A group of lions is known as the pride. प्राइड के नाम से जाना जाता है. सेकेंडली, मैं चाहती हूँ कि हम लेडीज, हम अपने परिवार का गर्व बने. Our family should be proud of us. So hence the name the pride. We should be the pride of our family. Hence the name. I will tell you one thing. When I read the pride, मुझे लगा आपका नाम है प्रियंका डी राव. So I thought it was like Priyanka, P-R-I and D, and that is how you came with the word pride. Okay, that's great. I never knew. This is one thing I never realized, and I'm realizing today.
that it is rhyming with my name too. Actually, this I have never thought in this way. Thought in this way, but somehow it came to be like that. Okay. Yeah, that's what I thought कि प्रियंका का नाम से ही उन्होंने द प्राइड वर्ड बनाया होगा, बट या चलो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं द यूनिवर्स हैज कनेक्टेड योर नेम, योर प्रोफेशन, एवरीथिंग, योर ब्रांड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। Yes, everything got connected. Yes, and then उसके बाद okay, जैसे मैं और ये जब शुरू हुआ, जैसे मैंने कंसेप्ट शुरू किया था ऑनलाइन का, तो मैंने ये जैसे मैंने बताया कि 2019 में, तो 2019 में ऑनलाइन का कंसेप्ट इतना था नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता था। मैं जब करती थी आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्यों कर रही हूँ ऑनलाइन, व्हाई आई एम सो मच ऑनलाइन। इनफैक्ट मुझे अपोज किया जाता था कि आप इतना क्यों ऑनलाइन कर रहे हो, क्या जरूरत है, आप इतना क्यों फेसबुक में दिख रहे हो, ये आपका काम नहीं है, यू शुड बी ऑन द फील्ड, यू शुड बी देयर मीटिंग पीपल। बट आई वाज वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि मैं सारी जिंदगी में फील्ड में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आई नो कि मेरे क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, मैं हमेशा नहीं रह सकती हूँ, बट हम वो फील्ड में ना रहते हुए भी मैं कितना काम कर सकती हूँ। आई न्यू दैट दिस थिंग इज गोइंग टू टेक टाइम, बट यस इट विल हैपन वन डे। तो मेरा जो भी था, वो कहते हैं बेबी स्टेप्स, वो स्टेप्स मैंने तभी लेना शुरू कर दिया था। तो अभी ऐसा हुआ जो 2020 में हुआ, तो इट वाज लाइक जो मैंने सोचा था, everyone has to come into this only, हर को वही कर रहा, जो मैं पहले से कर चुकी थी, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ ऑपोजिशन किया गया था, वो मैं पहले से कर रही थी। तो अभी सबको सब मुझे किसी का भी कन्विंस नहीं करना पड़ता है। नाउ इट्स वेरी इजी फॉर मी बिकॉज यस अभी कोई फील्ड में आना ही नहीं चाहता, या फिर आपको कोई फेस्टिवल्स मिलना भी नहीं चाहता, आप दूर ही अच्छे हो, आप ऑनलाइन अच्छे हो। सो दैट हैज रियली वर्क फॉर मी, एंड जो मैंने एक्चुअली मैंने जो सोचा था वही चीज हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लिटरली वेरी हैप्पी कि मेरी सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। मेरा जो फिटनेस क्लास है ऑनलाइन हो रहा है, मेरा मेडिटेशन ऑनलाइन हो रहा है, एंड मेरा जो प्राणायाम क्लास है ऑनलाइन हो रहा है, मेरी सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी। मेरा पहला लाइफ का इंटरव्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ ऑनलाइन हो रहा है, व्हाट कैन बी बेस्ट देन दिस। और एंड आई एम नॉट इवन इन मुंबई, आई एम इन कोलकाता राइट नाउ। मम्मी का I realize that आपका पोस्ट देख के मैं समझी कि आप मुंबई में नहीं हो फिलहाल। यस यस यस, और इससे ज्यादा बढ़िया चीज क्या हो सकती है। लिटरली आई एम डूइंग माय जॉब, आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग, आई एम एंजॉयिंग ऑल द लाइमलाइट, एंड क्या कहते हैं, आई एम एंजॉयिंग लिटरली। मैंने बोला मुझे सब कुछ चाहिए, आई वांट एवरीथिंग इन माय लाइफ, सो आई हैव राइट नाउ यस आई एम हैप्पी। यस ये कर दिया, देन एज सच मैंने बोला वो चीज, अभी ये चीज होगी कि चलो सब कोई ऑनलाइन में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैंने इसको यूज कर लिया कि आई न्यू दैट सिंस इट वाज नाउ ऑनलाइन, आई हैड द स्कोप ऑफ डेवलपिंग माई सेल्फ मोर। मुझे बहुत सारी जो चीजें हैं जो मैं बहुत दिनों से करना चाहती थी या सीखना चाहती थी, बट मुझे टाइम नहीं हो रहा था बेसिकली। सो आई यूज्ड एवरीथिंग। जो पैंडेमिक पीरियड था उसमें ऐसा था कि मुझे सबसे बेस्ट बात ये जो मेरी लर्निंग थी पैंडेमिक पीरियड में, कि एवरीवन केम अराउंड, कि आपके पास हर किसी ने अपना नॉलेज शेयरिंग शुरू कर दिया। एवरीवन, the healers started to share their knowledge, piece of knowledge. They started affirmations, they started meditations sessions, free of cost workshops, जो कि पहले नहीं होता था। फोटोग्राफी वर्कशॉप्स, लिटरली बहुत अच्छे फोटोग्राफी वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे थे, बहुत मस्त हो रहे थे। एंड सो जो बेकिंग सेशंस, केक बेकिंग सेशंस एंड ऑल, बहुत सारी चीजें लोग कर रहे थे, मैंने कभी नहीं किया, जस्ट एंजॉयड द केक्स एंड ऑल। I'm not so much into cooking, I'd say. तो बहुत सारी चीजें थी जो मेरी इंटरेस्ट की थी। I literally enjoyed all of this. सोशल मीडिया जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, बट मुझे ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं था ऑफ कोर्स टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। अभी ये ऐसा है कि कंपनी भी क्योंकि आ रही थी, कंपनी हैड टू चेंज देयर ओन पॉलिसीज। अभी कंपनी ने सिखाना शुरू कर दिया कि हाउ टू यूज सोशल मीडिया, हाउ टू यूज इंस्टाग्राम, FB, उन्होंने सिखाया। फिर बहुत सारे लोग हैं जैसे कि आप हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, जिन्होंने सिखाना शुरू कर दिया अपने पोस्ट के थ्रू, अपने ग्रुप्स के थ्रू। वहां से मैंने सीखा, प्रैक्टिस किया, तो बहुत सारे डेवलपमेंट मैंने इस बीच में की। यस और एक चीज था जो मेरे एक सपना था कि मैं, जैसे मैंने बोला आई लव टू पैम्पर माई सेल्फ। जब मैं अपने फिटनेस के पीछे और ब्यूटी के पीछे इतना मैं टाइम देती हूँ, तो व्हाई नॉट एंटर अ ब्यूटी पेजेंट टू। सो आई एंटर्ड अ ब्यूटी पेजेंट ऑल्सो। Yes, I am a public speaker too. So my having like fitness करना, I mean fitness पर ध्यान देना, and then अपना beauty पर pampering yourself, and then since I am a public speaker too,
इतने लोगों से इंटरेक्ट करना, तो आई यूज्ड ऑल ऑफ दोस थिंग्स व्हेन आई एंटर्ड इनटू द ब्यूटी पेजेंट। एंड यस, अगेन बाय गॉड्स ब्लेसिंग आई कुड विन ए क्राउन, एंड वो मेरा एक बचपन का ड्रीम था, आई कुड विन दैट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो 2020 वाज लाइक ऑसम फॉर मी। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की है जो मैंने कभी सोची नहीं थी, तो मैंने बहुत चीजें की, एंड आई लिटरली एंजॉयड। हाँ, बहुत सारे मैंने ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी जीते हैं, जैसे मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी में दिवाली का सेल्फी जीता था, दैट्स व्हेन आई गॉट टू मीट यू। ओके, एंड बिलीव मी, आई लव द जेस्चर, आई एब्सोल्युटली लव द जेस्चर कि आप आए, यू नो, स्पेंड विथ, एंड आप अगर सेंड भी कर देते तो वी वर हैप्पी विद द गिफ्ट एज सच, बट देन you, Amrita, along with her daughter, they came around. जब अमृता अपने डॉटर को लेके आई थी, मुझे अपने दिन याद है, क्योंकि मैं क्या करती थी, यही तो करती थी। तो अरे हर किसी को, लाइक हर किसी के घर पे जा जाके मिलना, उनको गिफ्ट देना, एक्चुअली अगर आप नहीं पे करते तो भी चलता, राइट, बट यू हैव डन इट। यही तो है, यही तो एक ह्यूमन टच है, यही तो एक पर्सनल टच है जो आपको दूसरों से अलग बना देती है। एंड दैट्स व्हाट आई डू, I give that personal touch to every person I come across. That human touch is very important in whatever you do, and that's what I loved about you. I was very happy. I was very happy. That was different. Yes, that's all. I mean, ये मुझे अपनी तरफ से, I think मैंने बहुत सारा बोला है। बहुत ज्यादा मैंने बोला है, एक्चुअली बहुत कुछ बोला है, मैं बोलना चाहती थी। I wanted people, ladies, to know that they can do whatever they want to do. Just वो डिसीजन, और जो पहला फाइट होता है वो आपके साथ होता है, खुद के साथ होता है। वो फाइट आपको खुद से जीतना है। जब तक वो फाइट आप खुद से नहीं जीतोगे, आप दूसरों से नहीं जीत सकते हो। फिर आप सिर्फ बहाने दोगे, बहुत सारे बहाने दोगे। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, ये हुआ वो हुआ, तो बिलीव मी, वो सपोर्ट भी मैंने अर्न किया है। वो सपोर्ट भी इजीली नहीं आया है, वो सपोर्ट मैंने अर्न किया है। एंड इट्स नॉट इजी। देखो, आप जब जॉब करते, लुक, आई एम ए बिजनेस वुमन। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने दुकान खोला है ना, मैं बैठी, अगर मैं वैसा करती तो भी लोगों को लगता कि भाई हाँ, ये कुछ काम कर रही है, दुकान में पूरा दिन बैठी रहती, बहुत मेहनत करती है। बट मैं यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, घर से काम कर रही हूँ, मैं सब कुछ संभाल के करती हूँ, और मैं दिख रही हूँ ऑल द टाइम घर पे। ये कंसेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर आप घर पे दिख रहे हो मतलब आप फ्री हो, आप फोन पे दिख रहे हो मतलब कुछ बेकार का काम कर रहे हो। वो लोगों को नहीं समझ में आता कि यू आर मोर देन बिजी। आप जब फोन पे रहते हो, एक्चुअली आप जब एक काम कर रहे हो, आप जब घर पे रहते हो, क्योंकि घर पे आप सब कुछ कर रहे हो उस वक्त, आप मल्टीटास्किंग एक्चुअली कर रहे हो। आप एक मीटिंग के लिए तैयार कर रहे हो, आप घर ठीक कर रहे हो, व्हाटएवर, इतने सारे काम कर रहे हो एक साथ, सब कुछ संभालते हुए। वो कंसेप्ट लोगों को नहीं समझ में आता है। और ऐसा जैसे बहुत कुछ बोला जाता है कि इफ यू गोइंग टू ए जॉब, ठीक है, वो जॉब पर जा रही है बेचारी, वो बच्चा क्या कर रहा है बेचारी, माँ एंड, बट यू आर डूइंग ए बिजनेस एंड मे बी यू आर अर्निंग मोर देन व्हाट द जॉब होल्डर इज अर्निंग। और इनफैक्ट आपके पास तो एज ए बिजनेस ओनर आई अंडरस्ट रियलाइज कि मेरी पोटेंशियल कितनी है अर्निंग की, वो मैं डिसाइड करती हूँ, कोई और नहीं डिसाइड करता है। इन एनी जॉब आपको एटलीस्ट 2 years वेट करना पड़ता है कि आपकी सैलरी बढ़े। वो भी 2 years के बाद जब सैलरी बढ़ती है, आपको सामने वालों को फीडबैक बहुत सारा अपनी ही बारी में गुणगान करना पड़ता है कि बता, मैंने ये किया ये किया ये किया, तो सो आई डिजर्व ए हाइक। उसके बाद जो हाइक होगी, जरूरत नहीं कि वो आपके मन का हाइक हो। बट यहाँ पर व्हेन आई एम डूइंग ए बिजनेस, इट इज मी हु इज डिसाइडिंग कि मुझे कितना कमाना है। मैं अकॉर्डिंगली अपना टाइम एडजस्ट करूंगी, अपना टाइम बैलेंस करूंगी। ये चीजें इट्स न्यू, या धीरे धीरे चीजें वैसे भी लोग जीनियसेस को वैसे भी नहीं समझते हैं। right, absolutely. These things, we have to face these things. आपको जीनियस बनना है, आपको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा काम करना है, so you have to face these things. और यही तो, अब जब तक स्ट्रगल करोगे नहीं, जब तक ये सारी ताने आप सुनोगे नहीं, तब तक आपको जीत का मजा कैसे आएगा? क्योंकि जब आप जब उस एक हाइट पे, जब आई कैन नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, क्या बोलते हैं वो जो बेस्ट हो, कुछ एक वर्ड होता है, आई डोंट नो। आपको जब वहां पर रखा जाता है, पेडेस्टल, व्हेन यू रीच दैट पेडेस्टल, आपको जब लोग ऊंचा देखते हैं, तो वही लोग जो है आपकी तारीफ करते हैं।
राइट, तो वो तारीफें सुनने के लिए भी यू हैव टू लिसन टू व्हाट हैव टू, वो जिगरा भी रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बिकॉज आपकी मंजिल बहुत ऊंची है। ये छोटी छोटी बातों से हमको रुकना ही नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। लेट देम स्पीक, बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इट्स ओके, राइट। जब तक आप किसी के दिल को नहीं दुखा रहे हो, जब तक आप किसी के लिए कुछ भी नहीं गलत कर रहे हो, आपके साथ भले ही कुछ गलत हो जाए, आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है, राइट। आपको अपने हर्ट को क्लियर रखना है, अपने सोल को क्लियर कर रखना है। तब तक आप जब आप किसी को हर्ट नहीं करते हो, तब तक नेवर एवर गिव अप ऑन योर फ्रेंड्स, नेवर। ये तो मैं बताना चाहूंगी, यस दिस इज माई ये। और एक चीज है कि मेरा हमेशा, आई मीन लिटरली मेरा बहुत बड़ा डर है, लिटरली मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं आज बहुत कुछ शेयर कर रही हूँ, दिल की बात बोल रही हूँ। इनफैक्ट मन की बात सुनना चाहिए आपको ना, मन की बात सुनना चाहिए इसका नाम। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी, मेरा बहुत बड़ा डर है जो मैं फील करती हूँ, यही कि लुक मेरे माँ बाप ने सोचो कि मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, आई वाज अ वेरी एम्बिशियस स्टूडेंट, आई वाज द प्राइड ऑफ माय पेरेंट्स ऑल द टाइम, हमेशा ऑल माय टीचर्स, ऑल माय एक्स बॉसेस स्पीकिंग हाईली ऑफ मी, बहुत अच्छे से। जब मैंने जॉब छोड़ा था, इट वाज अ बिग shock for all of them कि प्रियंका, how could you do this, you are such an ambitious lady, how could you do this, you cannot do this, my parents were like, हाय मेरी बेटी, उनको दुख होता है ना कि यार मेरी इतनी अच्छी बेटी, शी वाज सो इतनी अच्छी थी, उसने जॉब छोड़ दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी आपको तो संभालना ही, घर संभालना है, क्या कर सकते, लड़कियों का तो यही भाग्य होता है and all those things. But I didn't want to that bechari one. I want to enjoy, as I said, I want to enjoy best of both the worlds. I had made the best of whatever was given to me. हर एक चीज को, हर एक पत्थर को मेरी तरफ जो फेंका गया, मैंने उसको हीरा बनाया है, मैं ऐसा बताऊं कि। तो यस, आई वांट टू सेट एन एग्जांपल। अभी मेरे सामने ऐसा था कि आई वांटेड ऑलवेज वांटेड ए डॉटर फॉर माय सेल्फ, इसलिए बना डॉटर चाहती थी कि मैं उसको बहुत अच्छे से सजा सकूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहना सकूं, सारी जितनी फैशन है सब उसको ट्राई कर सकूं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वांटेड अ डॉटर। आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट अ डॉटर, मैं बहुत खुश थी। बट मेरे साथ में एक यही अगेन अनदर क्वेश्चन था कि again she will go through the same things that I have gone through. Look, I'm not saying, but it's a very big dilemma. हर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए होता है पेंडुलम, हम लोग पेंडुलम होते हैं, हर टाइम पेंडुलम होता है, क्या करना है क्या नहीं, क्या करना है करनी, वो डिसीजन जो है ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। एंड वी हैव ऑलवेज डू समथिंग गुड, लॉन्ग रन में आपको सब कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए, बट वो उस वक्त जो डिसीजन होता है, वो डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। तो अगर मैं अपनी बेटी के ही सामने एक बेचारी वाली माँ का जो है, अरे एवरी टाइम एवरीवेयर टाइम यू गो एवरीवन स्पीकिंग हाय हाय, तू तो इंजीनियर थी एंड ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, तो व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल एम आई सेटिंग इन फ्रंट ऑफ माय डॉटर? नो, माय डॉटर शुड सी मी, माय मदर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। इवन मैं जब अपनी बेटी को रिसीव भी करने जाती हूँ, मेरे बेटी के फ्रेंड्स उसको बोलते हैं, प्राजैतिक मम्मी कितनी अच्छी लगती है ना, आंटी ब्यूटीफुल। My That's the same thing I said when I met you for the first time. You have such a beautiful skin. so वो मेरी बेटी को बड़ा अच्छा लगता है यार, मेरी मम्मी को इन्होंने बोला, यू आर, जैसे आपको चाहिए कि आपके बच्चे बेस्ट हो, आपके बच्चे अच्छा चीज, हर कोई आपके बच्चे का नाम ले, बिलीव मी आपके बच्चे का भी आपसे सेम एक्सपेक्टेशंस है। Exactly, very true, very true. राइट, तो यू हैव टू वर्क इन दैट मैनर। कुछ भी करो, आप में बहुत सारा हुनर है। आई बिलीव, मैं अपने हर एक ग्रुप के साथ, मैं अपने हर एक टीम मेंबर के साथ वही करती हूँ, आई रियलाइज देयर पोटेंशियल। किसी को खाना बनाने के बड़ा शौक है, वो उसको उसी चीज में, बिलीव मी, वो ओरिफ्लेम कर सकता है, वही चीज से वो ओरिफ्लेम कर सकता है। हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, तो मैं हर किसी को उसके पोटेंशियल से वो कैसे बिजनेस कर सकता है, मैं वही सिखाती हूँ उसको, वो कैसे काम कर सकता है। किसी को पेंटिंग का शौक है, गो अहेड डू दैट, मैं उसमें उसको एनकरेज करूंगी। मैं कभी नहीं बोलूंगी यार तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। नो, यू आर एंजॉयिंग पेंटिंग, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने अपने पैशन को फॉलो किया था। तो वही चीज, मैं अपने एक एक मेंबर के पैशन को समझती हूँ, मैं उसको पुश करती हूँ, उस चीज को पुश करती हूँ, उसको जो पसंद है मैं उस चीज को पुश करती हूँ, क्योंकि वो जब खुश रहेगा अपने आप प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। मैं उस पर काम करती हूँ, मैं उस चीज, मैं ये नहीं करती हूँ कि हर किसी को कुछ पैसा कमाना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, नो। हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है, किसी को अच्छा लगता है कि मैं घर संभालूं,
मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, इट्स गुड, बट यस एक एंटिटी तो होनी ही चाहिए, जो भी है। बस अपना रिस्पेक्ट आपको अपनी फैमिली के सामने बनाए रखनी है, वो, क्योंकि आप जब ये चीज अपनी रिस्पेक्ट जब अपनी फैमिली के सामने बनाए रखते हो, बिलीव मी, यू आर मेकिंग प्राउड टू योर पेरेंट्स। जिन पेरेंट्स ने आपके, सोचो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना कुछ किया है, कितना बड़ा बनाया है, कितना दुख से आपके पेरेंट्स ने कितना पैसा खर्चा किया है, पढ़ाई के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे खर्चा किया है। तो उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स को क्या वापस देते हो, True. और मेकिंग द प्राउड ऑफ यू, इससे बेहतर गिफ्ट तो आप उनको दे ही नहीं सकते हो कि पूरा जमाना आपके बच्चे के बारे में बात कर रहा है, इससे बेहतर क्या गिफ्ट दे सकते, राइट? सो यस, थैंक यू करुणा, मुझे अपने बारे में इतना ही बोलना था। यस, दिस इज द मैसेज आई वांटेड टू गिव। And that's absolutely good, and it's really, very nice, because I'll tell you one thing. When I connect with women just sharing their stories, बहुत सारी stories होती है ना जिसमें लोग बहुत सारा struggle भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, people actually say that because of this and because of that, blame games, ये सब बहुत कुछ होता है. But your life is so much about yourself and how much you have taken decision, how much it's all about you. आपने किसी के भरोसे कुछ नहीं किया है. No, there was somebody who is going to push you or make you do things. It was you. You wanted to do, you did it, and how you did it was your choice. So this is what I loved about your journey, that it is completely your journey. There is no influence of anybody. There is nobody in the journey. Yes, But still, that journey has impacted many other women's life. The way yes, you are helping other women to join you, you're training them, you're helping. So I'm sure Oriflame में वैसे भी it's a huge team. I have seen many women associated with Oriflame, and मैं खुद भी personally काफी लोगों को जानती हूँ जो इस they're connected with them. So Priyanka is also one of them. And जो भी हमारी नारीज जो ये videos देख रहे हैं, या everyone who's watching, I'm sure you might have learned a lot from Priyanka today. yes, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कुछ अलग करो या कुछ आप बड़ा करो. छोटी सी शुरुआत भी करो, नॉर्मल चीजों में भी रहो, बट जिस पैशन से और जिस तरीके से उन्होंने किया है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. एंड I really loved Priyanka, the way you are, and then all the while you had a smile on your face. ना वो इतनी खुशी, ऐसे लग रहा है कि यार ये इंसान बहुत खुश है. She's happy and with her life. yes, which is which is very rare, like बहुत rare होता है ऐसे. मैंने बहुत rarely देखा है कि people are so much happy with everything about their life. So I just love that about you. I and this is about Priyanka, who is a director for Oriflame, and she has her own branding which is associated, which connects with Oriflame and the product. She's not only selling Oriflame products, but she is connecting with women across the globe, giving them opportunities to grow. So I'm sure she's the right person if you, any one of you, want to know. See, it's not about, see, Oriflame बहुत लोग करते हैं, but किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है. The way she said, she's connecting your passion with the work, which is very rare. So if you want to, learn how to connect your passion, need a support, I'm sure Priyanka is the one who will support you guys. So, right, Priyanka? yes, 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 definitely. Definitely connect with her. And Priyanka has been associated with us for many events. She's also participant for X Factor Award. So all the best for that also, Priyanka. she's so she has been a All sponsor the for this. She's also been sponsored for previous event. काफी contest में भी participate करते. She's along not just Oriflame, but along with that, she's doing multiple other things, and she's been achieving a lot in her life. Be it a beauty pageant, be yes, it being a public speaker. तो along with that, उन्होंने बहुत सारी growth है. ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान कोई लेकर बेचना है, but उन्होंने multiple चीजों में growth की है. And that is what, when I say that support, guide, and grow together is the tagline of Extraordinary. This is what even we intend to do, that let's support each other, let's guide each other the way she's doing, and let's try to grow. So growth is not only means money, yeah, status, it could be any form of growth. But yes, you have to grow. Like we grow करना बहुत important है. जहाँ है वहीं नहीं रहना है. So yes, that is what I've learned. And I always ask everyone कि यार थोड़ा अभी हम अपनी तारीफ करवा लेते हैं. एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बारे में बताइए, हमारे बारे में बताइए. But I'll not ask this to Priyanka because she's already spoke. Already उन्होंने काफी दिल खोल के हमारे बारे में भी बात कर ली है. But on the last note, Priyanka, do you want to say anything to our members? And also if you can share your brand name again and your details once again. yes.
First of all, Naris, since all of you are connected to Extraordinary, I should tell you that you are in a wonderful, wonderful platform. You have joined the correct group because here they take care कि आप कैसे grow करो as entrepreneurs, as a person, आप कैसे grow करो. They take very good care अगर आप चाहते हो तो. They take very good care, right? So yes, you are in a very right platform. I love it, and all of you will love it. आप जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं कि जी जो नए नए बिजनेस शुरू करें, कुछ करना चाहते हैं, आप जरूर यहाँ पर लेके आओ. अगर होम मेकर्स भी है फिर भी आओ, बिकॉज एज ए होम मेकर ऑल्सो आप एक अपना पर्सनालिटी भी डेवलप करते हो, राइट? Yes, and agar whenever it comes to pampering yourself, whenever it comes to a income opportunity, definitely I'd say please get in touch with me. My brand name is The Pride Beauty and Business, and our page remains with the same name. Instagram account is Priyanka Raut 1101, and my phone number is 88796 42449. Definitely connect with me. I'll be very, very happy to help. Thank you so much, Priyanka. Thank you. Thank you, Priyanka, so much, and thank you so much for इतने दिल खोल के बात करने and sharing all the beautiful journey of your life and inspiring so many life. I'm sure many women have got motivated today. Priyanka is herself so inspiring. तो आप काफी नारियों को, not only नारी, I wouldn't say कि this platform is only to support नारीज, even नर हमारे साथ काफी नर भी associate हो रहे हैं आजकल, हमारे X Factor में भी है. So which is really, I feel really glad and proud कि बहुत सारे नर भी हमारे साथ associate हो रहे हैं, they are valuing what we women are doing. So we are working and helping each other, supporting each other. So do connect with Priyanka and do whatever, if you feel that there is something that थोड़ा सा भी उनकी बातों में आपको लगा है कि कहीं ना कहीं ये मेरे दिल में भी है, just talk to her once. I'm sure she will find a way to help you or guide you at least, and that is really important. So on this note, we will take we'll call it a day. We'll end this movie today, जिसकी end नहीं पर एक शुरुआत होगी एक नए movie और एक नए story के साथ next time. See you all. Thank you so much and have a wonderful day. And bye Priyanka and bye to all. Yeah, thank you.